کہ مشکلات کا شکار عوام پر بجلی گرانے کی تیاریاں، بجلی کی قیمتوں میں اضافے کی درخواست دائر، فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں 47 پیسے فی یونٹ اضافہ مانگا گیا، سی سی پی اے کی درخواست سماعت کے لیے مقرر، نیپرا درخواست پر 29 جنوری کو سماعت کرے گی۔ بجلی کے صارفین پر ایک اور بوجھ ڈالنے کی تیاریاں، وفاقی حکومت نے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ سی پی پی اے نے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں 47 پیسے فی یونٹ اضافے کی درخواست دائر کر دی۔ سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی نے ایف پی اے کی مد میں اضافے کی درخواست دائر کی۔ دسمبر کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں قیمتوں میں اضافہ کیا جائے گا۔ نیپرا نے سی پی پی اے کی درخواست پر 29 جنوری کو سماعت مقرر کر دی۔ سماعت میں قیمتوں میں اضافے کی منظوری پر نیپرا فیصلہ کرے گی۔ منظوری ملنے پر صارفین سے فروری کے بلوں میں اضافی قیمت وصول کی جائے گی۔ واضح رہے کہ دسمبر میں بجلی کی پیداواری لاگت میں اضافہ ہوا، جس سے فیول پرائس کی مد میں قیمتیں بڑھانے کی درخواست دائر کی گئی ہے۔ عالمی بینک کے تعاون سے چلنے والے منصوبوں پر مجموعی پیش رفت یکساں نہ رہی، منصوبہ بندی اور ترقیاتی بورڈ کی تیار کردہ سرکاری رپورٹ سامنے آ گئی۔ عالمی مالیاتی ادارے نے بعض منصوبوں پر عدم اطمینان کا اظہار کیا۔ سستے گھروں کا منصوبہ، انسانی ترقی اور تعلیمی خدمات کا منصوبہ مقرر اہداف حاصل نہ کر سکا۔ 12 منصوبوں میں اب تک صرف 1 ارب 17 کروڑ ڈالر ہی خرچ ہو سکے۔ پنجاب میں عالمی بینک کے تعاون سے چلنے والے ترقیاتی منصوبوں پر مجموعی پیش رفت یکساں نہ ہو سکی۔ منصوبہ بندی اور ترقیاتی بورڈ کی تیار کردہ سرکاری رپورٹ سامنے آ گئی۔ عالمی مالیاتی ادارے نے بعض منصوبوں کے حوالے سے عدم اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ منصوبہ بندی اور ترقیاتی بورڈ کی جانب سے تیار کردہ سرکاری رپورٹ کے مطابق سستے گھروں کا منصوبہ، انسانی ترقی کا منصوبہ اور تعلیمی خدمات سے متعلق منصوبہ مقررہ اہداف بروقت حاصل نہیں کر سکے، جس کے باعث ان منصوبوں میں فنڈز کے اجراء کی رفتار متاثر ہوئی۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ان منصوبوں کے لیے مجموعی طور پر 2 ارب 40 کروڑ ڈالر کے قرضوں کی منظوری دی گئی تھی۔ پنجاب میں جاری 12 منصوبوں کے تحت اب تک صرف 1 ارب 17 کروڑ ڈالر ہی جاری اور استعمال ہو سکے ہیں۔ تقریباً 1 ارب 23 کروڑ ڈالر کی رقم تاحال اس وجہ سے موصول نہیں ہو سکی کہ متعلقہ اہداف مکمل نہیں کیے جا سکے۔ مالی نظام کے تحت رقم اسی صورت میں جاری کی جاتی ہے جب عملی طور پر طے شدہ اہداف حاصل ہوں۔ خیابان فردوسی جوہر ٹاؤن سیوریج تبدیلی منصوبہ دوسری ڈیڈ لائن مکمل کرنا واسا حکام کے لیے چیلنج بن گیا۔ واسا حکام نے منصوبہ ٹیکنیکل طور پر دسمبر 2025 میں مکمل کرنا تھا، ڈیڈ لائن گزار کر منصوبہ اے ڈی پی جون 2026 میں ڈال دیا۔ حکام کی عدم توجہ سے منصوبہ فاسٹ ٹریک کی بجائے سست روی کا شکار۔ خیبان فردوسی جوہر ٹاؤن سیوریج تبدیلی منصوبہ دوسری دی گئی ڈیڈ لائن کے مطابق بھی منصوبہ مکمل کرنا واسا حکام کے لیے چیلنج بن گیا۔ واسا حکام نے منصوبہ ٹیکنیکل طور پر دسمبر 2025 میں مکمل کرنا تھا، ڈیڈ لائن گزار کر منصوبہ اے ڈی پی جون 2026 میں ڈال دیا گیا۔ واسا اور کانٹریکٹرز حکام کی عدم توجہی سے منصوبہ فاسٹ ٹریک کی بجائے سست روی کا شکار ہو گیا ہے۔ منصوبہ آسان اور برق رفتاری سے مکمل ہو سکتا تھا، تاہم ناقص پلاننگ سے شہری پریشانی کا شکار رہے۔ واسا کی جانب سے ایل ڈی اے یو ٹرن سے علیم ڈار اکیڈمی یو ٹرن تک کا حصہ بھی کلیئر نہ کروایا جا سکا۔ کلیئر شدہ آدھے حصے پر ایل ڈی اے نے پتھر اور خاکہ ڈال کر اس فالٹ کے لیے تیاری مکمل کر لی ہے۔ کلیئر شدہ حصے کو مکمل کرنے کے باوجود بھی ایک یو ٹرن سے دوسرے یو ٹرن تک کلیئرنس نہیں ہوگی۔ شوق چوک سے اللہ گول چکر تک سیوریج ڈالنے کا منصوبہ تاحال سست روی کا شکار ہے۔ ایل ڈی اے کے متعلقہ ڈائریکٹر اور ایکسینز کے دورے بھی فوٹو سیشن تک محدود ہیں۔ پنجاب حکومت نے صوبے بھر میں سہولت بازاروں کی تعداد مزید بڑھانے کا فیصلہ کر لیا۔ پنجاب میں تحصیل کی سطح پر 30 نئے سہولت بازاروں کی تعمیر کا آغاز کر دیا گیا۔ محکمہ عشر و زکوٰۃ پنجاب نے رواں سال 8 ارب روپے مستحقین میں تقسیم کرنے کے لیے مختص کر لیے۔ ادھر آئی جی پنجاب نے تھرڈ کوارٹر کا 44 ارب کا بجٹ لاہور سمیت تقسیم کر دیا۔ پنجاب حکومت نے صوبے بھر میں سہولت بازاروں کی تعداد مزید بڑھانے کا فیصلہ کر لیا۔ پنجاب میں تحصیل کی سطح پر 30 نئے سہولت بازاروں کی تعمیر کا آغاز کر دیا گیا۔ منصوبوں کو 30 جون 2026 تک مکمل کرنے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ نئے منصوبے کی تکمیل کے بعد پنجاب میں سہولت بازاروں کی مجموعی تعداد 154 ہو جائے گی۔ سہولت بازاروں کی توسیع منصوبے کے تحت مجموعی طور پر 15,400 دکانیں قائم کی جائیں گی، جس سے 30,800 افراد کو براہ راست روزگار کے مواقع میسر آئیں گے۔ محکمہ عشر و زکوٰۃ پنجاب نے رواں سال 8 ارب روپے مستحقین میں تقسیم کرنے کے لیے مختص کر لیے۔ 3 ارب روپے گزارہ الاؤنس کی مد میں تقسیم کیے جائیں گے۔ 20 کروڑ روپے جہیز فنڈ کی مد میں مستحقین کو دیے جائیں گے۔ محکمہ زکوٰۃ کے حکام کے مطابق امداد مستحقین میں میرٹ پر تقسیم کی جائے گی اور حقدار تک اس کا حق پہنچایا جائے گا۔ آئی جی پنجاب نے تھرڈ کوارٹر کا 44 ارب کا بجٹ لاہور سمیت تقسیم کر دیا۔ بجٹ کا 85% تنخواہوں اور پینشن کی مد میں، جبکہ آپریشنل معاملات کے لیے صرف 15% کا بجٹ جاری کیا گیا۔ سب سے زیادہ
ज्यादा बजट लाहौर पुलिस को 6 अरब 90 करोड़ के फंड्स जारी किए गए। आईजी पंजाब ने 35 करोड़ के फंड्स तमाम आरपीओस को दे दिए हैं। सीसीडी को 4 अरब, सीटीडी को 1.5 अरब के फंड्स दिए गए। ट्रैफिक पंजाब को 6.25 करोड़, पंजाब कांस्टेबलरी 2 अरब, जबकि स्पेशल ब्रांच को 1 अरब 30 करोड़ रुपए के फंड्स दिए गए हैं। हाउसिंग सोसाइटीज़ में फ्रॉड के मुतासिरीन के लिए अहम फैसला। पंजाब में हाउसिंग सोसाइटीज़ के लिए अलग पुलिस स्टेशन और फोर्स बनाने की तजवीज़। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब ने सिफारिशात हुकूमत को पेश कर दी। फोर्स से जाली हाउसिंग सोसाइटीज़ के खिलाफ फौरी एक्शन होगा। पैरा फोर्स को भी ये इख्तियारात देने की सिफारिश। प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज में फ्रॉड से बचाव के लिए इकदाम। पंजाब में हाउसिंग सोसाइटीज के लिए अलग पुलिस स्टेशन और फोर्स बनाने की तजवीज दी गई है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब ने सिफारिशात हुकूमत को पेश कर दी। फोर्स से जाली हाउसिंग सोसाइटीज के खिलाफ फौरी एक्शन होगा। ज़राए के मुताबिक तजवीज में कहा गया है कि नई फोर्स को प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज के खिलाफ बराह रास्त कार्रवाई के इख्तियारात दिए जाएंगे, जिससे जाली और गैर कानूनी सोसाइटीज के मामलात जल्द निपटाए जा सकेंगे। फोर्स को हाउसिंग रेगुलेटर के साथ मुंसलिक पुलिस स्टेशन में तैनात करने की भी सिफारिश की गई है। ज़राए का कहना है कि इस निज़ाम के तहत जाली हाउसिंग सोसाइटीज के खिलाफ फौरी एक्शन मुमकिन हो सकेगा और सोसाइटी से मुतालिक मामलात के लिए अलग पुलिस निज़ाम पर कानून साजी की तजवीज़ भी शामिल है। पीरा फोर्स को भी ये इख्तियारात देने पर गौर किया गया है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत के हतमी फैसले के बाद इन सिफारिशात को हतमी शक्ल दी जाएगी। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 धुंध की वजह से बंद। मोटरवे को शहरियों की हिफाजत के लिए बंद कर दिया गया। तेज रफ्तारी से गुरेज करें, अगली गाड़ी से मुनासिब फासला रखें। मोटरवे तर्जमान के मुताबिक दौरानी सफ़र गाड़ियों में फोग लाइट्स का भी लाजमी इस्तेमाल करें। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 धुंध की वजह से बंद कर दी गई। मोटरवे को शहरियों की हिफाजत के लिए बंद किया गया है। ये बता रहे हैं तर्जमान मोटरवे का। तेज़ रफ्तारी से गुरेज करें, जबकि अगली गाड़ी से मुनासिब फासला रखें। दौरानी सफ़र गाड़ियों में फोग लाइट्स का इस्तेमाल लाजमी करें। सर्दी की शिद्दत बरकरार, शहर का दर्जा हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। फ़ज़ाई आलूदगी में भी इजाफा, मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 266 रिकॉर्ड। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आ गया। तफसीलात जानते हैं तौकीर अकरम से। जी तौकीर, बताइएगा। देखिए, शहर लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर की फहरिस्त है और मौजूदा जो आलूदगी की शरह रिकॉर्ड की गई है वो 266 रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा शहर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर आलूदगी की शरह में काफ़ी हद तक इजाफा देखने में नज़र आ रहा है, जबकि CERP ऑफिस की जो शरह आ रही है वो 400 के करीब है, 400 प्लस हो चुकी है, जो कि सबसे ज़्यादा आलूदगी की शरह शहर के अंदर उस इलाके की रिकॉर्ड की जा रही है। इसी हवाले से जो है वो माहिरीन की जानिब से सख्त हदायत दी जा रही हैं कि आलूदगी की शरह में इजाफे की वजह से मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। दूसरी जानिब सर्दी की शिद्दत में भी जो है वो खातिर ख्वाह कमी देखने में नज़र नहीं आ रही है। रात के औकात में सर्दी की शिद्दत में इजाफा देखने में नज़र आता है, जो कि तकरीबन आज मौजूदा दर्जा हरारत कम अज़ कम रिकॉर्ड किया गया है वो 11 डिग्री सेंटीग्रेड है। और कहा यह जा रहा है कि मज़ीद दिनों में जो है वो सर्दी की शिद्दत में इजाफा होने का इम्कान है। सूरज की किरणें की वजह से जो है वो सर्दी की शिद्दत में कमी देखने में नज़र आई है, जो कि टेम्परेचर पहले रिकॉर्ड किया जा रहा था 5, 6, 7 और अब जो है वो टेम्परेचर 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। लेकिन माहिरीन जो हैं उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि खुश्क सर्दी जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। इस हवाले से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तौकीर अकरम अपडेट करने के लिए। बसंत को महफूज बनाने के लिए सेफ सिटीज़ के खुसूसी इंतजामात। शहर भर में मॉनिटरिंग के लिए 30 जदीद कैमरों से मॉनिटरिंग की जाएगी। शहर की 5 ड्रोन कैमरों से मॉनिटरिंग होगी। मॉनिटरिंग के लिए मंगवाए गए ड्रोन्स नाइट विजन कैमरों से मुज़य्यन हैं। बसंत के तीनों दिन ड्रोन्स शहर भर में मुतहरिक रहेंगे। बसंत को महफूज बनाने के लिए सेफ सिटीज ने खुसूसी इंतजामात कर लिए। शहर भर में मॉनिटरिंग के लिए 30 जदीद ड्रोन कैमरों से मॉनिटरिंग की जाएगी। सेफ सिटीज हुकाम का कहना है कि शहर की 6 डिविजन्स में 5 ड्रोन कैमरों से मॉनिटरिंग होगी। मॉनिटरिंग के लिए मंगवाए गए ड्रोन्स नाइट विजन कैमरों से मुज़य्यन हैं। बसंत के तीनों दिन ड्रोन्स शहर भर में मुतहर्रिक रहेंगे। लाहौर पुलिस के पास ड्रोन्स भी मॉनिटरिंग के लिए इस्तेमाल होंगे। सेफ सिटीज में तीनों शिफ्ट में मॉनिटरिंग के लिए इजाफी ड्यूटियां लगाई जाएंगी। हुकूमत की जानिब से बसंत के लिए जारी करदा SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद के लिए तमाम कैमरे बरूए कार लाए जाएंगे। और यहाँ आपको बताएं, पंजाब की सबसे बड़ी टैक्स जमा करने वाली अथॉरिटी की गाड़ियाँ टोकन टैक्स नादहिंदा निकल आईं। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की मुताबिक सरकारी गाड़ियों पर टोकन टैक्स की अदम अदायगी का इंकशाफ। PRA की कई गाड़ियाँ साल 2023 से टोकन टैक्स नादहिंदा में शामिल। मुतादिद सरकारी गाड़ियाँ बरसों से बगैर टोकन टैक्स सड़कों पर रवां दवा।
पंजाब की सबसे बड़ी टैक्स जमा करने वाली अथॉरिटी की अपनी मुतादिद सरकारी गाड़ियां टोकन टैक्स नातोहिंदा निकल आईं। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की कई सरकारी गाड़ियां साल 2023 से टोकन टैक्स नादहिंदगी की फहरिस्त में शामिल हैं। मुतादिद गाड़ियां बरसों से बगैर टोकन टैक्स सड़कों पर रवां दवा हैं। जराये के मुताबिक ये नादहिंदा गाड़ियां पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के मुख्तलिफ अफसरान के जेरे इस्तेमाल हैं, जबकि महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन के रिकॉर्ड में गाड़ियों के टोकन टैक्स की आखिरी अदायगी 30 जून 2024 तक दर्ज है। टोकन टैक्स की अदम अदायगी के बावजूद सरकारी गाड़ियां सरकारी ईंधन और दीगर सहूलियात के साथ इस्तेमाल की जा रही हैं, जिससे सूबाई खजाने को लाखों रुपए के नुकसान का खदशा जाहिर किया जा रहा है। टैक्स वसूल करने वाले इदारे की अपनी टैक्स नादहिंदगी ने शफाफियत, कानून की बालादस्ती और इदारा जाती एहतसाब पर सवालात उठा दिए हैं। अमल दरामद न होने पर शहरी हलकों में तशवीश पाई जा रही है। कच्चा जेल रोड मियाँ चौक की गली नंबर 10 में 5 माह से सीवरेज का निज़ाम नकारा हो गया। डबनपुरा से मुंसलिक बेशतर गलियों में 5 माह से सीवरेज मसाइल ने मकीनों का जीना मुहाल कर दिया। शहरियों को दरपेश मसाइल का अहवाल इस रिपोर्ट में। कच्चा जेल रोड मियाँ चौक की गली नंबर 10 में 5 माह से सीवरेज का निजाम नाकारा। इलाके में गटर उबलने लगे। इलाका मकीन शदीद अजियत और कर्ब में मुब्तला हो गए। रिहायशियों के मुताबिक सीवरेज लाइनों की बंदिश के बायस गंदा पानी मुसलसल गलियों में बह रहा है। मकीनों ने आला हुक्काम से मुतालबा किया है कि सीवरेज निजाम की मुकम्मल मरम्मत और असर नौ तामीर की जाए। दुबनपुरा से मुंसलिक बेशतर गलियों में 5 माह से सीवरेज मसाइल ने मकीनों का जीना महाल कर दिया। मच्छरों की बहुतात, बच्चे बीमार पड़ने लगे। अहले इलाका कहते हैं सीवरेज के गंदे पानी के बायस इलाके में बदबू और ताफुन फैल रहा है। मकीनों ने आला हुकाम से सीवरेज की नई पाइपलाइंस बिछाने का मुतालबा किया है। नेशनल हॉकी स्टेडियम का ट्यूबवेल एक बार फिर खराब हो गया। 3 रोज से नेशनल हॉकी स्टेडियम और अतराफ में पानी की शदीद किल्लत है। पानी की कमी के बायस पिंक गेम्स खेलता पंजाब में शरीक खिलाड़ी भी परेशान हैं। दफातर में काम करने वाले मुलाजमीन को भी परेशानी का सामना है। नेशनल हॉकी स्टेडियम का ट्यूबवेल गुज़श्ता जुम्मे की शाम से खराब है और इसको ताहाल ठीक नहीं किया जा सका। लाहौर चिड़ियाघर के दाखिली रास्तों पर नज़ खराब मेटल डिटेक्टर्स सिक्योरिटी इंतजामात पर सवालिया निशान बन गए। मेटल डिटेक्टर्स गैर फाल होने के बायस चिड़ियाघर आने वाले शहरियों की चेकिंग मुमकिन नहीं रही। शहरियों ने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर मेटल डिटेक्टर्स की मरम्मत या नए आलात नस्ब किए जाएं ताकि आवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के तलबा तालबात ने इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। पहले 2 सेमेस्टर्स में सप्ली वाले तलबा ने इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की। दूसरी जानिब लाहौर के दर्जा चारम और क्लरिकल स्टाफ सालों से अफसरान के साथ तैनात होने के इंकशाफ के बाद मेंबर स्कूल कौंसिल और अहले इलाका ने एहतजाज किया। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के तलबा और तालिबात ने इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। पहले 2 सेमेस्टर्स में सप्ली वाले तलबा ने इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की। एहतजाज में तलबा ने हाथों में प्ले कार्ड्स पकड़कर इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की। तलबा और तालिबात का कहना था पहले सप्ली के पेपर्स दें और दोबारा तीसरे सेमेस्टर की क्लासेस लें। हमारा मुतालबा है कि पहले सप्ली के पेपर्स लिए जाएं, फिर तीसरे सेमेस्टर के पेपर्स हों। अगर तीसरे सेमेस्टर की क्लासेस दोबारा हुई तो साल जाया हो जाएगा। दूसरी जानिब लाहौर के सरकारी स्कूल्स में दर्जा चारम और क्लरिकल स्टाफ सालों से अफसरान के साथ तैनात होने के इंकशाफ के बाद मेंबर स्कूल कौंसिल और अहले इलाका ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि स्कूलों के नायब कासिद, इम्तियाज, लॉ ऑफिसर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब के साथ तैनात हैं। स्कूल के जूनियर क्लर्क अरशद अली CEO ऑफिस ड्यूटी लगाई गई। मेंबर स्कूल कौंसिल का कहना है कि दर्जा चारम की अफसरान के साथ तैनाती से स्कूल कूड़ादान बन गया है। उन्होंने मुतालबा किया है कि वजीर आला नोटिस लें और दर्जा चारम मुलाजमीन की तैनाती वापस स्कूल में कराएं। काना के इलाके में बाप समेत 2 बेटों के कत्ल की वारदात का मौमा हल। खातून समेत 2 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। SP इन्वेस्टिगेशन मॉडल टाउन शाहिद नवाज फराइश का प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना काहना ने पुलिस टीम की हमरा कार्रवाई करके मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। DI साहब इन्वेस्टिगेशन के हुक्म पर मैं भी फौरी तौर पे SSP ऑपरेशन भी फौरी तौर पर मौके पे गए। 3 जो डेड बॉडीज़ हैं एक घर में मौजूद हैं और वो चूँकि डिकम्पोज डेड बॉडीज़ थी, पता चला कि ये जो 3 डिसीज जो डेड बॉडीज़ हैं ये कुछ अरसे से लापता थी। एट अ टाइम 2-3 जो तफ्तीशी टीमें हैं उनको फॉर्म किया गया। इस अकरस के 12 घंटे के अंदर अंदर ना सिर्फ इस मुकदमे को ट्रेस किया बल्कि जो उसका मरकजी मुल्ज़म है उसकी एक हमराई खातून मुल्ज़मा है उनको भी अल्हम्दुलिल्लाह गिरफ्तार कर लिया। जो हमारा मरकजी मुल्ज़म है उसका इनके जो बुजुर्गों के बच्चों के साथ तल्लुकात थे। जो नुमान साहब का बेटा कामरान है उसके साथ ये 2008-9 में लेबर डिपार्टमेंट का कॉन्ट्रेक्चुअल काम है उसमें ये सारे इकट्ठे शरीक थे। लाहौर हाई कोर्ट और मातहत अदालतों में दिन भर होने वाले अहम समातों का अहवाल इस रिपोर्ट में।
मियां शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ नैब रेफरेंसेस। हाई कोर्ट ने चेयरमैन नैब की 6 साल कबल दायर दरखास्त गैर मौसर करार देकर निपटा दी। जस्टिस मोहम्मद अमजद रफीक और जस्टिस मोहम्मद जवाद जफर पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच के रूबरू चेयरमैन नैब की जानिब से दायर दरखास्त पर समाअत हुई। अदालत ने तमाम कानूनी निकात को मद्देनजर रखते हुए नैब की दरखास्तें गैर मौसर करार देकर निपटा दी। दोनों केसेस में मजीद कार्रवाई का इम्कान फिलहाल खत्म हो गया। साबिक IG पंजाब कैप्टन रिटायर्ड उस्मान खटक के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत। हाई कोर्ट ने दरखास्त वापस लेने की इस्तदा मंजूर करते हुए केस निपटा दिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने दरखास्त पर समाअत की। तजावुजात के नाम पर रेडियां हटाने और बेरोजगार करने का केस। अदालत का रेडीवान की दरखास्त ना निपटाने पर DC पर इजहार बरहमी 22 जनवरी को तलब कर लिया। जस्टिस राहील कामरान शेख ने दरखास्त पर समाअत की। हाई कोर्ट में बुशरा बीबी से जेल में मुलाकात करने के लिए एतराजी दरखास्त पर समाअत। अदालत ने ऑफिस एतराज बहाल रखते हुए दरखास्त निपटा दी। जस्टिस फारूक हैदर ने मुबशरा खावर मानेका की दरखास्त पर बतौर एतराज केस समाअत की। 9 मई जलाओ घेराव के 2 मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी की बादस गिरफ्तारी जमानत पर समाअत 27 जनवरी तक मुलतवी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने आइंदा समाअत पर पुलिस से मुकदमात का रिकॉर्ड तलब कर लिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली गिल ने समाअत की। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जिना हाउस हमला और अस्करी टावर हमला केसेस की जेल ट्रायल कार्रवाई 9 फरवरी तक मुलतवी कर दी। गवाहान को शहादत रिकॉर्ड कराने के लिए तलब कर लिया। चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करने का केस, घर में दाखिल होकर सामान उठाने पर SHO नवाकोट एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। एडिशनल सेशन जज राशिद तुफैल रेहान ने अहकामात जारी किए। अदालत ने करार दिया कि अगर जुर्म साबित हो तो एहलकारों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जाए। सेशन अदालत ने कत्ल केस का फैसला सुना दिया। मुजरिम उमैर को सजाए मौत 4 लाख मुआवजे का हुक्म। सेशन जज लाहौर तारिक खुर्शीद ख्वाजा ने मुजरिम को सजा सुनाई। गाजियाबाद पुलिस ने 2024 में कत्ल का मुकदमा दर्ज किया था। नाफरमान बीवी खर्चे की हकदार है, कानूनी नुक्ता सामने आ गया। वाहदत रोड की रजिया ने शौहर से खर्चा दिलवाने का दावा दायर कर दिया। वालिदैन बुजुर्ग हों तो बीवी अलहदा रिहाइश का मुतालबा नहीं कर सकती। बीवी नाफरमान है, खुद झगड़ कर चली गई। शौहर सलमान का मौक़िफ़। अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनकर फैसला महफूज कर लिया। पुलिस एहलकार के रिश्वत लेते हुए वीडियो पर DIG ऑपरेशंस का नोटिस। पुलिस एहलकार अब्दुल रहमान गिरफ्तार, नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। महकमाना कार्रवाई का बे हुक्म दे दिया। पुलिस एहलकार अब्दुल रहमान थाना रावी रोड में तैनात था। मजीद तफसीलात जानते हैं इसरार खान से। जी इसरार, बताइएगा। जी, रिंग रोड पर कार सवार शहरी से रिश्वत वसूल करने वाले पुलिस एहलकार को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम पुलिस एहलकार अब्दुल रहमान थाना रावी रोड में तैनात था। मज़कूरा पुलिस एहलकार ने रिंग रोड पर कार सवार शहरी को रोककर चेकिंग के बाद रिश्वत वसूल की। रिश्वत वसूल करने की मोबाइल वीडियो सोशल मीडिया की मदद से मंजर आम पर आई तो DIG ऑपरेशन फैसल कामरान ने वाक़या का नोटिस लेते हुए मुलजिम की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दिया। DIG ऑपरेशन ने गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ सख्त महकमाना कार्रवाई करते हुए नौकरी से बर्खास्त करने की भी हिदायत की है। फैसल कामरान का कहना है कि बदउनवान और इख्तियारात से तजावुज करने वाले एहलकार किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इसरार खान अपडेट करने के लिए। सूबाई वज़ीर ख्वाजा इमरान नज़ीर की साबिक चेयरमैन खुर्रम नज़ीर से उनके भाई और साबिक मशीर वज़ीर आला सलाहुद्दीन से उनकी भावज के इंतकाल पर ताज़ियत और मरहूमीन के लिए दुआए मग़फ़िरत की। सूबाई वज़ीर सेहत व आबादी ख्वाजा इमरान नज़ीर साबिक चेयरमैन खुर्रम नज़ीर की रिहाइशगाह गए। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने खुर्रम नज़ीर से उनके बड़े भाई के इंतकाल पर ताज़ियत की और मरहूम के दर्जात बुलंदी के लिए दुआए मग़फ़िरत की। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा कि मरहूम नजम नज़ीर मुस्लिम लीग नून का सरमाया थे, उनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर साबिक मशीर वज़ीर आला सलाहुद्दीन की रिहाइशगाह भी गए और उनकी भावज के इंतकाल पर ताज़ियत की। मरहुमा की रूह के साले स्वाब के लिए दुआए मग़फ़िरत की। हल्का N130 UC 73 में बिलाल पार्क और छोटी बिलाल पार्क का इफ्तिताह। वाइस चेयरमैन LDA मियां मरकूब अहमद और मामून खुसूसी वज़ीर आला पंजाब राशिद नसरुल्लाह ने पार्क्स का इफ्तिताह किया। लीगी रहनुमा चौधरी मुबशर नासिर की जानिब से बिलाल पार्क में खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में वाइस चेयरमैन LDA मियां मरगूब अहमद और मावन खुसूसी वज़ीर आला पंजाब राशिद नसरुल्लाह ने 2 मजीद पार्क्स का इफ्तिताह कर दिया। मियां मरगूब अहमद और राशिद नसरुल्लाह ने हल्का N130 UC 73 में बिलाल पार्क और छोटी बिलाल पार्क का इफ्तिताह किया। मियां मरगूब अहमद का कहना था कि ये पार्क्स मियां नवाज शरीफ की जानिब से शहरियों को तोहफा है। जी, हम 6वां पार्क जो है इस सूबाई हल्के के अंदर इसका इफ्तिताह कर रहे हैं और आगे भी तकरीबन ये 35-36 पार्क हैं जिन्होंने मेरे सूबाई हल्के के अंदर मुकम्मल होना है। तो ये इंतहाई खूबसूरत पार्क, स्टेट ऑफ द आर्ट, और आज इस घुटन और पोल्यूशन और इस टेंशन के माहौल के अंदर लोगों को एक अच्छा एटमॉस्फेयर जो है वो दिया जा रहा है।
राशिद नसरुल्लाह का कहना था कि मुस्लिम लीग नून हमेशा अपने शहरियों के लिए बेहतरीन मंसूबे लाती है। विजन तो कायद मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का है। इस हल्के के वो MNA भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह NA 130 के, तो उनका ये ख्वाब था, उस ख्वाब की ताबीर के लिए हम दिन रात कोशा हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो ये था जी कि NA 130 के जितने भी पार्क्स हैं उनको स्टेट ऑफ द आर्ट पार्क बनाया जाए। वहाँ बच्चों के लिए जदीद किस्म के झूले, वर्जिश का सामान, खेलों की छोटी स्पोर्ट्स ग्राउंड और दीगर इस तरह की सेहतमंद तफरीह जो है वो मुहैया की जाए। तकरीब में चौधरी सुहेल, मोहम्मद मुनीर, अरसलान हफीज, मलिक जुबैर, सैयद नदीम उल हसन शाह, चौधरी खालिद अजीज, अदनान भट्ट, मियां तनवीर, मियां इमरान आसिफ समेत लीगी कारकुनान ने शिरकत की। कैमरामैन मोहम्मद असद के हमरा तौकीर अकरम, सिटी 42। SSP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद की ज़ेर सदारत मीटिंग हुई। पेंडिंग और ज़ेर इल्तवा मुकदमात की प्रोग्रेस रिपोर्ट का जायजा लिया। क्राइम मीटिंग में SP इकबाल टाउन सिद्रा खान, मुस्लिम टाउन सर्कल के इंचार्जेस और लीडर्स ने शिरकत की। SSP इन्वेस्टिगेशन ने पेंडिंग और ज़ेर इल्तवा मुकदमात की प्रोग्रेस रिपोर्ट का जायजा लिया। अफसरान को ज़ेर इल्तवा और पेंडिंग केसेस के चलान जल्द अज जल्द अदालतों में जमा करवाने की हिदायत की गई। नाकिस कारकर्दगी, सुस्ती और अदम दिलचस्पी पर मुतादिद इंचार्जेस को वार्निंग जारी की गई। SSP इन्वेस्टिगेशन का कहना था कि इश्तिहारी मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए तमाम वसाइल बुरवेकार लाए जाए। SSP इन्वेस्टिगेशन का कहना था कि ख़वातीन और बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल में मुलव्विस अनासर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। उधर चेयरमैन एप्टमा कामरान अरशद का कहना है कि हम सनतों की चाबियां हुकूमत को देने जा रहे हैं, वो खुद सनतें चला लें। महंगी बिजली से 150 मिलें बंद हो चुकी, अब मजीद कारोबार कैसे करें? हुकूमत फौरी मौशी इमरजेंसी नाफिज करे, ब्यूरोक्रेसी को गाड़ियां बांटने और सड़कें बनाने की बजाय आवाम को रोजगार के मौके फराहम करने के लिए काम करें। चेयरमैन एप्टमा कामरान अरशद ने एप्टमा हेड ऑफिस में दीगर ओहदेदारान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कामरान अरशद ने कहा कि पाकिस्तान की टेक्सटाइल की सनत जवाल की तरफ जा रही है। 19.55% एक्सपोर्ट दिसंबर में नीचे जा चुकी है। टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट 8% कम हुई और 150 मिलें बंद हो चुकी। हम किसी से कोई सब्सिडी नहीं मांग रहे, हम किसी से कोई मराहत या बेनिफिट नहीं मांग रहे। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं कि इस मुल्क में जो सनत रह गई है वो बच जाए एंड वो फिर से अपने पाँव पे खड़ी हो जाए, तो आपको बिजली के रेट से क्रॉस सब्सिडी जो आप सनत से पैसे लेते हैं, जो दूसरों का खमियाजा सनत के सर पे डाल रहे हैं, वो आपको वापस लेना होगा, चाहे आप उसे PSDP का हिस्सा बना दें, चाहे आप उसे बिस्प का हिस्सा बना दें। चेयरमैन नॉर्थ जोन असद शफी का कहना था कि SIFC के नेशनल कोऑर्डिनेटर ने भी तस्लीम किया है कि 350 अरब रुपए की क्रॉस सब्सिडी को वापस लिया जाए। मईशत का पहिया रुक जाएगा तो अंडरपास बनाने से कुछ नहीं होगा। दूसरों की बिजली चोरी का बोझ सनतों पर मत डालें। पावर मिनिस्ट्री की सारी कैलकुलेशन गलत हैं। सिर्फ ये 150 मिले तो एक ऊपर का नंबर है जो हमारे मेंबर्स हैं, बट इन हर 150 मिल के तकरीबन 200 सप्लायर होते हैं, ठीक है, वो सब भी बंद हो गए हैं। सो पूरी चेन पूरी चेन बंद होगी। हम तो ये बात कर रहे हैं कि आपके पास एक्सेस बिजली पड़ी हुई है, हमारे पास सनत यहाँ पर तैयार है, हमारे पास ग्लोबली कंपेरेटिव एंड वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट मशीनरी पाकिस्तान में अवेलेबल है। सारी इटालियन जर्मन मशीनरी पाकिस्तान में लगी हुई है, हमारी लेबर की कॉस्ट सस्ती है। हम तो सिर्फ ये बात करें कि सस्ती बिजली दे दें तो हम कल से एक्सपोर्ट स्टार्ट कर देंगे। एप्टमा रहनुमाओं का कहना था कि सनत को कौमी तरजीह बनाया जाए। अगर ऐसा ना हुआ तो अगले 6 माह की एक्सपोर्ट भी मजीद कम हो जाएगी। हमें अमेरिका और चीन की तिजारती जंग का फायदा होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। कैमरा टीम के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के रीजनल कैंपस लाहौर में वज़ीर आज़म लैपटॉप स्कीम के तहत लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब मुनक्किद हुई। लाहौर रीजन से ताल्लुक़ रखने वाले 200 तलबा में लैपटॉप तकसीम किए गए। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के रीजनल कैंपस लाहौर में वज़ीर आज़म लैपटॉप स्कीम के तहत लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब मुनक्किद हुई। वाइस चांसलर अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर नासिर महमूद शरीक हुए। वाइस चांसलर का कहना था कि लैपटॉप की सबसे ज्यादा जरूरत अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को है। ओपन और फासलाती निज़ाम तालीम में जदीद टेक्नोलॉजी नागज़ीर हैसियत रखती है। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में जी कुल कोई 2500 के करीब लैपटॉप्स हैं जो हम पूरे पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लाहौर जो है ये हमारा पंजाब का एक चैप्टर है जिसमें आज 200 बच्चों को हमने लैपटॉप तकसीम किए
मकसद बच्चों की एम्पावरमेंट है। ऑब्वियसली हम चाहते हैं कि जो आज के जदीद दौर में जिस तरह के एजुकेशनल रिसोर्सेज अब ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं, तो ये हमारे स्टूडेंट जो हैं इनकी एक्सेस उस तक बढ़ जाए। तलबा ने वज़ीर आज़म लैपटॉप स्कीम को तालीमी तरक्की के लिए एक अहम और मुस्बत कदम करार दिया। मैं BS सोशियोलॉजी कर रही हूँ 4th सेमेस्टर में, और ये मुझे लैपटॉप हासिल करके बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये हमारे फ्यूचर में हमारी अचीवमेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि हमारा सारा सिस्टम ऑनलाइन है, असाइनमेंट्स, क्विज वगैरह। इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट कि हमें जो है ना प्राइम मिनिस्टर लैपटॉप में हमें लैपटॉप मिला, और मेरिट बेस पे था, इसमें कोई ऐसा सच कुछ नहीं था कि रेफरेंस था, मेरिट बेस हम लोगों ने लैपटॉप लिया। इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट। मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं थैंकफुल हूँ शहबाज शरीफ साहब की, जिन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम इस प्लेटफॉर्म में आकर अपनी कारकर्दगी दिखा सकें। तकरीब में डायरेक्टर जनरल रीजन सर्विसेज डॉक्टर मलिक तोकीर अहमद खान, डायरेक्टर स्टूडेंट्स अफेयर्स काजिम अली सैयद और रीजनल डायरेक्टर अमानुल्लाह मलिक शरीक हुए। कैमरामैन अहमद अली के हमरा तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42। लाहौर म्यूज़ियम जहां तारीख खामोश नहीं बल्कि अपने हज़ारों साल पुराने किस्से सुनाती है। म्यूज़ियम में मौजूद कबल तारीख और वादी सिंध गैलरी हमें इंसानी तहजीब के इब्तदाई दौर में ले जाती है, जहां फ़न, हुनर और शऊर ने पहली बार शक्ल इख्तियार की। लाहौर म्यूजियम की कबल तारीख और वादी सिंध गैलरी हमें हजारों साल पीछे इंसानी तहजीब के इब्तदाई सफर में ले जाती है। इस गैलरी में रखी गई नबातरात इस बात की गवाह हैं कि बरसगीर में इंसान ने किस तरह रहन सहन, फन और दस्तकारी को तरक्की दी। गैलरी में मौजूद रकासा का मुजस्मा, हड़प्पाई ज़रूफ और इंडस वैली के बर्तन इस दौर की रोजमर्रा जिंदगी और ज़ौक़े जमाल को जाहिर करते हैं। निस्वानी मूर्तियाँ, पक्की मिट्टी के खिलौने, जानवरों की मूर्तियाँ, मिट्टी के बर्तन, मटके, सीप से बनी अशिया और कांसी के औजार इस दौर की सनत, तिजारत और हुनरमंदी को उजागर करते हैं। म्यूजियम एजुकेशन ऑफिसर राबिया बसरी का कहना है, लाहौर म्यूजियम की ये गैलरी खास तौर पर तलबा और नौजवान नस्ल के लिए तरतीब दी गई है। हमें पता चलता है कि ये खित्ता कितना कदीम है, यहाँ पे सकाफत कब से उसका आगाज़ हुआ और किस तरह की सकाफत का आगाज़ हुआ, हम कितने महज़िब और कितने आप कहें कि आर्ट फ्रेंडली लोग थे, किस तरह का रहन सहन था। तो वो सारी चीज़ें अगर आप सीखना चाहते हैं तो लाहौर म्यूज़ियम में इंडस वैली गैलरी, प्री हिस्टोरिक गैलरी विज़िट करें, क्योंकि हमारी तारीख़ प्री हिस्टोरिक से स्टार्ट होती है। सियाहों का कहना था कि गैलरी में कदीम दौर की नवादरात को करीब से देखने का मौका मिलता है। ये वादी सिंध के ये पुराने ज़माने के बहुत ज़्यादा अच्छे चीज़ें लगाई हुई हैं, उन्होंने देख के पता चल रहा है कि ये किस दौर में क्या इस्तेमाल हो रहा है और क्या नहीं इस्तेमाल हो रहा। बहुत अच्छा है ये। यहाँ पे मिट्टी से बने हुए कुछ ऐसे पीसेस मिले जिनसे ये लगता है कि ये औजारों में यूज़ हुए हैं। फिर मुख्तलिफ बच्चों के जो खिलौने लग रहे हैं जिनसे ऐसे लग रहा है, जो ये सामने भी रखे हुए हैं, जिस ऐसे महसूस हो रहा है कि या तो ये बच्चों को खेलने के लिए या फिर उनकी ग्रोथ के लिए कुछ स्पेशल रस्म रिवाज के लिए यूज़ होते थे। लाहौर म्यूजियम की ये गैलरी नई नस्ल को अपनी कदीम तहजीब से जोड़ने का एक अहम जरिया है। कैमरामैन साकिब बट के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। PHF वुमेन विंग का इजलास सेक्रेटरी वुमेन विंग तंजीला आमिर चीमा की ज़ेर सदारत हुआ। इजलास में मुख्तलिफ अमूर पर मशावरत की गई। इजलास में सदर पंजाब वुमेन हॉकी विंग आबदा तनवीर, सेक्रेटरी राहत खान और चांद परवीन समेत कोच मोहम्मद परवेज़ और PHF ऑफिशियल मोहम्मद अदीब भी शरीक हुए। इजलास में गोजरा में वुमेन हॉकी टूर्नामेंट के खिलाफ मौसूल होने वाली शिकायत का जायज़ा लिया गया। सेक्रेटरी वुमेन विंग ने तहकीकात के लिए आबदा तनवीर, राहत खान और रज़िया रिजवी पर मुश्तमिल 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। लाहौर रीजन अंडर 15 क्रिकेट टूर्नामेंट के पहले रोज़ ईस्ट जोन ग्रीन ने ईस्ट जोन रेड को 5 विकेटों से शिकस्त दी थी। न्यू इत्तेफाक ग्राउंड पर ईस्ट जोन रेड की टीम पहले खेलते हुए 94 रन बनाकर आउट हो गई। मोहम्मद यार 22 और सैयद हसन रजा 14 रन बनाकर नुमाया रहे। ईस्ट जोन ग्रीन के विकेट कीपर मोहम्मद बहादुर ने विकेटों के पीछे 7 कैचेस किए। जवाब में ईस्ट जोन ग्रीन ने 5 विकेटों के नुकसान पर हदफ पूरा कर लिया। हुसैन शाहिद 55 रन बनाकर नुमाया रहे। ईस्ट जोन रेड के फलक शेर ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। फ़कीर मोहम्मद मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट का आगाज़ हो गया। इफ्तिताही रोज़ 4 मैचेस खेले गए। मोहम्मद ज़ुहैब और अब्दुल हफीज़ की जोड़ी ने कामयाबी हासिल की। निश्तर पार्क जिम्नेजियम हॉल में खेले जा रहे टूर्नामेंट के पहले मैच में सिविल जज वसीम अहमद और सखी सरवर की जोड़ी ने सैदुल हसन और मोहम्मद अख्तर के खिलाफ 1 के मुकाबले में 2 सेट से कामयाबी हासिल की। दूसरे मैच में गौहर नफीस और मोहम्मद वकील की जोड़ी ने मोहम्मद आतिफ और कबीर चौधरी के खिलाफ कामयाबी हासिल की। और तीसरे मैच में मोहम्मद ज़ुहैब और अब्दुल हफीज़ की जोड़ी ने अज़हर मुग़ल और मोहम्मद खालिद को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त दी। चौथे और आखिरी मैच में
मेंबर वज़ीर आला इंक्वायरी कमीशन मलिक मुबशर अहमद खान और सैयद अरशद शाह की जोड़ी ने राना मोहम्मद अख्तर और ताहिर हुसैन के खिलाफ कामयाबी हासिल की। पंजाब काउंसिल ऑफ द आर्ट्स का थिएटर्स में ड्रामा कवानी की खिलाफ वर्जी पर सख्त एक्शन, स्टेज अदाकारों की परफॉर्मेंस पर नोटिस जारी कर दिए। थिएटर हॉल्स को भी ड्रामा औकात की पाबंदी न करने पर नोटिस जारी किए गए। अदाकारा नासली, मिनाहिल खान, सिल्क, ज़ारा अली और आबिद शाह को पब्लिक इन्वॉल्वमेंट और ड्रामा कवानीन की खिलाफ वर्जी पर नोटिस जारी किए गए। इसी तरह कमाल थिएटर, पंजाबी थिएटर और नाज थिएटर को भी कवायद की खिलाफ वर्जी पर नोटिस जारी किए गए। पंजाब काउंसिल ऑफ द आर्ट्स के मुताबिक तमाम फनकारों और थिएटर इंतज़ामिया को दो रोज़ के अंदर अपने जवाब जमा कराने की हिदायत की गई। हुक्काम का कहना है कि ड्रामा कवानीन पर अमल दरामद को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। बसूरत दीगर सख्त तादीबी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। आप रहिए सिटी 42 के साथ।